I welcome you all to this webinar on careers in engineering, which is co-hosted by SBA Emerging Youth Scholarship and Mentorship Scheme and University Institute of Technology, UIT Shimla. I sincerely thank all the participants who have joined today, including the students, the scholarship students, as well as the UIT Shimla students, all our mentors, our panel members for today who will be presenting it, and the members of the SBA program team. And we also have the spokesperson from UIT Shimla. My special thanks to the esteemed panel, which consists of 5 industry veterans who have designed and who are conducting this webinar today. So let me quickly introduce the panel members today, and then we can start the session. Our first panelist is Ms. Megha Vasisht. She has some health issues. I'm not sure if she has joined today. She is a DCE graduate, and she is a cybersecurity compliance specialist. She has worked with Big 4 consulting companies in India, and then she is now a growing entrepreneur. And the second panelist for us is Mr. Hetal Sonpal, who is now on the screen, as you can see him. He is a startup evangelist with 22 plus years of experience in tech industry, having worked with companies like Wipro, Microsoft, LinkedIn, and Intel. Our third panelist today is Dr. Amrendra Sharma, who is now on the screen. Dr. Amrendra is a professor of physics at IIT Guwahati. He is a PhD from IIT Delhi, and he has been a visiting scientist at University of Central Florida, USA. Our fourth panelist is Piyush Bishnoi, who is on the screen now. He has worked in R&D area for 22 years, and past 6 years, he has been involved into higher technical education. He holds a PhD in mechanical engineering from University of Cincinnati, USA. And our fifth panelist, Mr. Niren, who you can see on the screen now, is the CEO of Fusion Inc. USA. He has pursued his BTech from IIT Varanasi and then MS in Computer Science from University of Cincinnati, USA. We also have with us the spokesperson from UIT Shimla, Dr. Shalu. She is presently working as the assistant professor at UIT Himachal Pradesh University, Shimla. Dr. Shalu received her MTech degree in microelectronics and VLSI from IIT Roorkee. And then she has also completed her PhD in electronics and communication from NIT Hamirpur in 2019. Dr. Shalu has published more than 10 research articles in reputed international and national journals. I welcome Dr. Shalu you in this webinar today. Let me now transfer it to Mr. Piyush, who will be starting it. Yeah, thanks, Ashutosh. I'll just open the slides once you give me the rights to share screen. I've transferred the right. Can you just check? It says host disabled participant screen sharing. Ashutosh, you need to share it to Piyush. I think you shared to Parul, sir. I think by mistake. Okay. I shared it to Parul. Okay, sorry. I think the host is with Parul. So Parul will have to transfer it. Parul, you are there? Let me do one thing. I'll just enable the participant screen sharing so Piyush can go ahead and do it. I've taken care. Try that, Piyush. I'm able to reclaim some of it. Okay. Yes, I got it. Thank you. And here's the title slide. I hope everyone can see it. If you can, then I'll request Hetalji to. Yes, good. Good evening, everyone. And we are very happy to be hosting this
webinar on careers in engineering. और जब हम लोगों ने पैनल में डिस्कशन किया तो सबसे पहली चीज़ भाषा की आई। मैं समझ सकता हूँ कि आप सबको अंग्रेज़ी की यूसेज की इतनी आदत नहीं होगी, तो जहाँ तक बन सकेगा हम लोग हिंदी और अंग्रेज़ी दोनों का यूज़ करेंगे। स्लाइड का कंटेंट क्षमा कीजिए पूरा अंग्रेज़ी में है, लेकिन ये स्लाइड डेक आपको बाद में मिल जाएगा। एंड जब भी ऐसे कोई प्रेजेंटेशन होते हैं, जो लिसनर होते हैं उनके माइंड में एक चीज़ रहती है कि मैं नोट्स लिखूं, शुड आई मेक नोट्स और शुड आई लिसन। एंड आई वुड एम्फसाइज कि आप प्लीज सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिए, डोंट वरी अबाउट टेकिंग नोट्स। यहाँ पे जो कुछ भी स्लाइड पे है वो सब कुछ आपको स्लाइड डेक में मिल जाएगा। वील बी होस्टिंग दिस प्रेजेंटेशन ऑन द SBA वेबसाइट, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। सो जस्ट पे अटेंशन टू व्हाट वी आर सेइंग, don't worry about taking notes. So thanks a lot to SBA for having given us this opportunity, and I thank UIT University for having nominated their students for this webinar. And we will start with multiple different topics today. Piyush, you can switch to the first slide. हमने जो प्रेजेंटेशन का जो डिज़ाइन किया है, वेबिनार को जो डिज़ाइन किया है, ये इंजीनियरिंग अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के फ्यूचर को माइंड में रखते हुए किया है कि गोइंग फॉरवर्ड वंस यू आर इन योर थर्ड और मे बी फाइनल ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, द इमीडिएट वरी वुड बी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या, राइट? आप यहाँ पे आप कुछ तस्वीर देख रहे हैं, शायद आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी। ये 3 इडियट्स के कुछ बेहतरीन डायलॉग्स हैं जो बहुत रेलेवेंट है इंजीनियर्स के लिए। मुझे खुद याद आ रहा है 92 to 96 का जो 4 साल का मेरा इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस, जो तजुर्बा है, वो ऑफ कोर्स याद करने लायक है। एंड हम सब लोग एग्जाम से डरते थे, तो जब एग्जाम आती है तो हम सबको डर लगता है, लेकिन एग्जाम के आगे जीत है। नेक्स्ट स्लाइड। सक्सेस, राइट? सक्सेस या तरक्की, हम लोग काफी मेहनत करते हैं कि हम सक्सेसफुल हो जाएं, लेकिन सक्सेसफुल होने की जगह बेहतरीन होने के लिए एक्सेलेंस के पीछे आप जाइए। आप जो कर रहे हैं उसको थोड़ा बेटर करें, उसमें ज्यादा फायदा है। नेक्स्ट स्लाइड। So finally we come to the agenda. I will not spend too much time on the agenda, but basically यहाँ पे 3 सेक्शन है। पहला है प्लेसमेंट्स, जॉब्स के ऊपर। हम सबको नौकरी चाहिए, हमने हमारे माता पिता ने हमारी एजुकेशन पे पैसे खर्च किए हैं, तो सबसे पहला काम रहता है थोड़े पैसे कमाए जाएं। तो उस हिसाब से पहला फोकस करियर पाथवेज पे है। जनरल करियर पाथवे क्या होना चाहिए आपका, करियर्स चूज करने के लिए क्या क्या आपको गाइडेंस चाहिए, वो हम आपको देंगे। एंड देन ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस स्किल्स क्या होती हैं, कंपनीज कौन सी हैं जिसमें जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, कहाँ अप्लाई करना चाहिए। कुछ लोग बोलेंगे हमें आगे काम नहीं करना, हमें और पढ़ाई करनी है, हमें जो पसंद आया हमें और पढ़ना है, तो उसके लिए हायर स्टडीज का राउट है। हायर स्टडीज पे भी हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आता है स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप का जो फेस। आजकल एंटरप्रेन्योरशिप काफी चर्चे में है। देयर आर लॉट ऑफ फेमस एंटरप्रेन्योर्स हु हैव अचीव्ड लॉट ऑफ सक्सेस, एंड दैट्स व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स नाउअडेज थिंक आई डोंट वांट टू डू अ जॉब, आई वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो हम कुछ फोकस उस पर भी लाएंगे। I'll move to the next slide and I'll request Piyush ji to take up the next slide. Sure, thank you हेतल। तो आगे बढ़ते हुए अगले 10 या 15 मिनट में मैं आपसे 2 चीज़ पे बात आकर्षित करना चाहूँगा। एक तो ये कि जो करियर सिनेरियो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, क्रमागत उन्नति कैसे हुई है उसकी, क्योंकि वो बहुत विशेषतर है आपके लिए जानने के लिए। जो पहले ऑप्शंस थे, विकल्प थे, और आज जो है उनमें बहुत फ़र्क है। और दूसरी चीज़ ये कि इतने सारे विकल्प हैं तो आपको ज़रूर कुछ न कुछ तो प्रश्न पूछने पड़ेंगे कि उसमें किस चीज़ को चयन किया जाए। तो उसकी एक विधि आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। एक विधि है, उसमें अनेक तरीके आप कर सकते हैं, तो आशा करता हूँ आपको वो मदद करेगा। तो आगे बढ़ते हुए जैसा मैंने बताया क्रमागत उन्नति कैसे हुई है, जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये जब मैंने इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी 20-30 साल पहले, तब का है। तो उस वक्त अगर आप देखें जो इंजीनियरिंग ब्रांचेस थी वो बहुत कम थी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, और कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट्स में एरोस्पेस एंड मेटलर्जी भी थी। तो आपका चयन जो था वो बहुत लिमिटेड था। और अगर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है तो जैसे मैंने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में काम करना चालू किया,
और शुरू में ठीक है, मैंने 2-3 साल काम किया, उसके बाद मुझे चाहत हुई कि मैं किसी पावर स्टेशन में काम करूं, संभव था। लेकिन जैसे-जैसे मैं ऑटोमोबाइल क्षेत्र में ही काम करता रहा, 10 साल निकल गए, तो उससे बाहर होना बहुत मुश्किल था। तो ये सर्कल वही दर्शाते हैं। तो एक बार मैंने अगर क्षेत्र चुन लिया, तो फिर मुझे उनमें क्या अवसर हैं और मैं उसमें कैसे उन्नति कर सकता हूँ, और उन्नति हर एक व्यक्ति के लिए अलग होती है। किसी के लिए ज़िम्मेदारी बढ़े वो होती है, किसी सबके लिए वेतन तो ऑफ़ कोर्स इम्पोर्टेंट है। वेतन होती है, या ऑर्गेनाइज़ेशन या संगठन पे क्या प्रभाव पड़े ज़्यादा से ज़्यादा, वो होती है। तो एक बार आपने अगर जो क्षेत्र चुन लिया, तो उसमें फिर बहुत नैरो हो जाते थे, संक्षिप्त में हो जाते थे, और उसमें फिर जो अच्छा स्पॉट है ढूँढने के लिए, जो आपको आगे अवसर भी प्रदान करे और उन्नति के लिए भी अवसर दे, वो बहुत छोटा हो जाता था। और जो राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, वो मौजूदा स्थिति है। तो आप देखेंगे, एक तो सर्कल सॉलिड नहीं है, सब डैश लाइन है। और जो आपका पैशन है, जो आपका जुनून है, वो आज की तारीख में आप ज़रूर हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो अवसर हैं और जो उन्नति के लिए पथ हैं, वो बहुत हैं। ऑफ़ कोर्स जब इतने सारे विकल्प हो जाते हैं, तो उसमें फिर आपको थोड़ा चिंतन तो करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं करना, और वही मैं आगे बताऊँगा। लेकिन उसके पहले आपको मैं 2 व्यक्तियों का परिचय देना चाहता हूँ, सिर्फ़ इस बात पे आपका ध्यान दिलाने के लिए कि पैशन से आप क्या हासिल कर सकते हैं। और ये दोनों व्यक्ति ऐसे हैं जो आप वर्ल्ड वाइड वेब पे इनके बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहें तो जान सकते हैं। तो पहला व्यक्ति है अक्षत राठी। अगर इनका बैकग्राउंड देखें, तो इन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 2012 में डी.फिल करी है, व्हिच मीन्स पीएचडी, इक्विवेलेंट ऑफ पीएचडी। और अगर आप आज देखें कि ये क्या काम कर रहे हैं, तो ये स्टार रिपोर्टर हैं ब्लूमबर्ग, जो न्यूज़ एजेंसी है। तो आप देख सकते हैं कहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीएचडी और कहाँ अब ये रिपोर्टर हैं। लेकिन वो उनका पैशन था, जुनून था। और आप देख सकते हैं यहाँ जो लिखा हुआ है कि किस तरह उन्होंने उस क्षेत्र में जाने के लिए क्या-क्या किया। तो उन्होंने इंटर्नशिप करी 2 जगह, 3 जगह, और उसके बाद 5 साल के लिए क्वार्ट्स में सीनियर रिपोर्टर थे, और उस तरह से आगे बढ़ते गए। और आज की तारीख में ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ हुई थी सस्टेनेबिलिटी पे, जो एमिशंस के वो एमिशंस के बारे में, उसमें ये स्टार रिपोर्टर थे। और अगर आप इनकी स्किल्स देखें, तो इन्होंने कैसे अपनी स्किल्स या कौशलता बढ़ाई, तो इन्होंने ब्लॉगिंग चालू करी, फिर एडिटिंग चालू करी, और फिर साइंस रिपोर्टर बने। और यहाँ कुछ लिंक दिए गए हैं जिसमें मैं आपको ज़रूर प्रेरित करूँगा कि यूट्यूब पे जो लिंक है यहाँ, जब आपको प्रेज़ेंटेशन मिले ज़रूर देखिएगा। दूसरा जो उदाहरण है वो मिसेज़ अरुंधति भट्टाचार्य, आप शायद इनसे वाकिफ़ हों। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चेयरपर्सन से रिटायर हुई 2017 में। और अगर मैं आपको बताऊँ कि इनका बैकग्राउंड क्या है, तो आप आश्चर्यचकित हो जाएँगे। इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया है इंग्लिश में, और आप सोच सकते हैं इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद स्टेट बैंक में सबसे ऊपर का स्थान प्राप्त करना कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये साबित कर दिया है कि आपको अगर जुनून है, पैशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और अब इनका ये नहीं कि ये इनका करियर समाप्त हो गया हो, ये अब एक्चुअली एक यूएस सॉफ्टवेयर कंपनी में सीईओ हैं, सेल्सफोर्स। तो आप देख सकते हैं कहाँ से कहाँ चले गए वो। सो ये आपसे भी मुमकिन है, आज की तारीख में ये सब मुमकिन है। और फिर यहाँ लिंक दिए गए हैं, इसमें एक यूट्यूब का लिंक है, जो आप बाद में देख सकते हैं, जिसमें इन्होंने आईआईएम बैंगलोर में जो कन्वोकेशन हुआ था, जहाँ डिग्रीज़ दी जाती हैं, उसमें एक लेक्चर दिया था, आप ज़रूर सुनिएगा। अब आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जैसा मैंने बताया था, अ, ओह बाय द वे, जो जहाँ कोट है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज की टू सक्सेस विद क्वेश्चनिंग माइंड एंड लर्नर्स ह्यूमिलिटी, दिस इज समथिंग व्हिच आई हैव एक्सट्रैक्टेड, वो यूट्यूब में से ही मैंने इधर निकाला है, जो आज की तारीख में बहुत रेलेवेंट है। तो आगे बढ़ते हुए मैं जैसा बोला था, आपके पास बहुत विकल्प हैं। मैं आपके समक्ष 5 प्रस्तुत करूंगा प्रश्न, जिस पर आप चिंतन करिएगा। पहला प्रश्न तो यही है कि आपको किस डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग में जुनून है, क्या आपको पसंद है? और मैं जानता हूँ हालाँकि कि आप लोग सभी ने ये चयन कर लिया है, लेकिन सिर्फ़ मैं इसलिए यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के बाद सेकंड ईयर में लगे कि नहीं,
मुझे ये सब्जेक्ट या ये डिसिप्लिन नहीं किसी दूसरे डिसिप्लिन में जाना हो, तो लैटरल एंट्री का भी अपॉर्चुनिटी रहती है, अवसर रहते हैं उसी कॉलेज में या दूसरे कॉलेज में, या कई बार आपको जो क्षेत्र आपने चुना है, ब्रांच चुनी है, उसको बदलाव करने के भी अवसर रहते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कहाँ पहले 30 साल पहले सिर्फ 5 या 6 क्षेत्र हुआ करते थे, अब ये बढ़ते ही जा रहे हैं और बढ़ते जाएंगे। तो आपके पास बहुत अवसर हैं। दूसरा जो अहम प्रश्न है, अगर आपने एक क्षेत्र चुन लिया है, तो आप किस इंडस्ट्रियल सेक्टर में, किस औद्योगिक क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे? हो सकता है आप इनमें से कई जो लिखे गए हैं उनसे परिचित हों, लेकिन मैं आपसे आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के बारे में जरूर जानकारी हासिल करिए। जैसे लॉजिस्टिक्स है, रिटेल है, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस है, ये सब इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो आप अगेन वर्ल्ड वाइड वेब पे अगर जाएं तो इन सब के बारे में जानकारी जान सकते हैं। तो किस औद्योगिक क्षेत्र में आप काम करना चाहेंगे? और जैसा मैंने पहले बताया, इसका ये मतलब नहीं कि आज की तारीख में आप एक औद्योगिक क्षेत्र का चयन करें, उसी में पूरी जिंदगी बिता दें। आपके पास बहुत अवसर हैं, लेकिन कौन से क्षेत्र आपको पसंद है, उसका चयन करना आपके लिए उचित होगा। तीसरा प्रश्न है कि आपने ये दोनों चीज का चयन कर लिया और अब आप किस क्षेत्र में, अगर आप किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में देखें तो दो चीजें होती हैं। एक तो तकनीकी जानकारी, या जिसमें तकनीकी कौशल लगता है, टेक्निकल फंक्शंस होते हैं जो वहाँ लिखे गए हैं। इंजीनियरिंग है जिसमें जैसे आप कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशंस, तो कोडिंग होगी। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, मेंटेनेंस एंड सो ऑन। तो इनका आपसे परिचित होना भी बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से फिर आप चुन सकते हैं कि हाँ, मुझे टेक्निकल एरिया में जाना है या दूसरी तरफ मैनेजमेंट फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो जैसे कई बार होता है और कई एग्जाम्पल्स हैं, कई उदाहरण हैं जहाँ लोगों ने अपना करियर तो चालू किया टेक्निकल फंक्शन से, लेकिन बाद में मैनेजमेंट में जाना चाहते थे, तो वो भी पॉसिबल है। और अगर आप शुरू से चाहते हैं कि आप मैनेजमेंट में जाएं अपने डिग्री, इंजीनियरिंग डिग्री के बाद भी, तो एमबीए डेफिनेटली एक विकल्प है जो आप आगे बढ़ सकते हैं उससे करके। अब जो लास्ट दो क्वेश्चंस हैं, जो प्रश्न हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए मेरे हिसाब से। एक तो ये कि आपके पास कोई लोकेशन कंस्ट्रेंट है क्या? क्या आपको अपने परिवार जहाँ रहते हैं उनके नज़दीकी ही काम करना है, या जैसे आप लोग कंप्यूटर साइंस के ग्रेजुएट्स हैं तो जो सेंटर्स हैं वो हैं नोएडा, एनसीआर रीजन, या हैदराबाद या बैंगलोर, वहाँ आप जा सकते हैं। वो आपकी पारिवारिक जिम्मेदारी क्या है, आपके परिवार क्या चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चयन कर सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि मैं क्या जोखिम बड़ा काम ले सकता हूँ, विच मीन्स रिस्क ले सकता हूँ जिस जिस क्षेत्र में भी काम करना चाहता हूँ, और मैं कुछ और बात करूँगा इस बारे में, या मुझे सुरक्षित रहना है जिसको जॉब सिक्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रश्न भी बहुत अहम है। ये अगर 5 प्रश्नों का आप थोड़ा चिंतन करें तो ये आपको मदद कर सकते हैं कि मैं किस क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। अब आते हैं कितने विकल्प हैं आपके पास, और यहाँ लिखे हुए हैं, तो मैं ऊपर के टॉप राइट हैंड कॉर्नर से चालू करता हूँ। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर आप वाकिफ होंगे, इसमें अगर जॉब सिक्योरिटी देखा जाए तो थोड़ी अच्छी रहती है। आपने सुना होगा कि कोई गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ने लोगों को निकाल दिया हो। उसके नीचे आए तो प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स है। स्टार्टअप कंपनीज में ऑफ कोर्स आपको रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन रिस्क भी बहुत हाई है। एंड प्राइवेट सेक्टर में होता है कई कंपनीज जैसे इकोनॉमिकली अगर अच्छी नहीं कर रही हैं, तो ये हो चुका है, मैं भी उसको झेल चुका हूँ, मुझे भी निकाला गया था एक प्राइवेट सेक्टर से, तो वो मुमकिन है। और अगर आप राइट हैंड साइड पे देखें तो नीचे आपके लिए एकेडमिक्स या हायर स्टडीज। मैं जब एकेडमिक्स बोल रहा हूँ तो मतलब आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको उस प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए आगे की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। आज जैसा आप जानते होंगे, जो भी बड़े अनुसंधान केंद्र हैं या कॉलेजेस हैं, उसमें पीएचडी होना ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में पढ़ाने के लिए। या फिर आप हायर स्टडीज़ के लिए जा सकते हैं, जैसा मैंने बोला एमबीए, अगर मैनेजमेंट फंक्शन में आपको
इंटरेस्ट है। और जो ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में है, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हैं और इंडिपेंडेंट फ्रीलांसर हो सकते हैं, जिसको आजकल गिग इकोनॉमी बोला जाता है। इसके बारे में आप वर्ल्ड वाइड वेब पे और जानकारी जान सकते हैं। इसमें यही है कि आप घर बैठे डिफरेंट दूसरे कई लोगों के साथ काम कर सकते हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होता है। तो आप एक ही दिन में हो सकता है 4 काम ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि उनकी डेडलाइन क्या है, और इस तरह से आप पैसा भी कमा सकते हैं घर बैठे। तो ये कोविड के बाद बहुत बढ़ोतरी मिली है इसको, जैसा आप समझ सकते हैं क्यों। और मैंने यहाँ रिस्क और अपॉर्चुनिटी, जो जॉब सिक्योरिटी, उसको रेट करने की कोशिश करी है रिलेटिव टू ईच अदर। वो आप देख सकते हैं जब आपका प्रेजेंटेशन देखेंगे। और यहाँ विकल्प के बारे में और जानकारी अगर आपको मालूम करनी हो तो बहुत सारे लिंक हैं, हर विकल्प के लिंक हैं। जैसा कि हेतल जी ने बोला, ये प्रेजेंटेशन आपके साथ हम शेयर करेंगे, तो मैं आपको वापस बोलूँगा कि इन लिंक्स पे ज़रूर जाइए, आपको बहुत ज़्यादा और जानकारी मिल जाएगी। लेकिन ये ज़रूर है कि आप किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं और उसमें क्या प्रिपरेशन लगेगी, वो आपका करियर गोल क्या है, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, उस पे बहुत निर्भर करता है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी चीज़ के लिए कौशल ज़रूरी है। तो यहाँ लिखे गए हैं 2 चीज़। सॉफ्ट स्किल, शायद आप सभी लोग इससे परिचित हों। जो स्कॉलर्स हैं हमारे एसबीए आश्रम के, वो जानते होंगे कि बोधामी प्लेटफ़ॉर्म से हमने आपके सॉफ्ट स्किल असेस करने की कोशिश करी है, और उसके ही वजह से आपके लिए इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग क्लासेस भी चालू हैं, जो आप लोग अटेंड कर रहे हैं। जो हाइलाइटेड हैं वो आज के औद्योगिक क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है, जो लिखे गए हैं वहाँ बोल्ड में। उसी प्रकार टेक्निकल स्किल्स है, और ये टेक्निकल स्किल्स मैंने थोड़ा जानबूझकर कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स पे फोकस करके लिखी हैं। और फिर जो आप देख रहे हैं, जो बोल्ड में है, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आप देखें तो पाइथन की बहुत ज़रूरत है। तो वो एरियाज़ हैं जो औद्योगिक क्षेत्र ने हाईलाइट करे हैं कि ये हमें बहुत ज़रूरी है। और ये आप भी जानते हैं कि जिस तरह से उन्नति हो रही है और बदलाव आ रहा है, आप एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकते जहाँ तक आपकी सॉफ्ट स्किल और टेक्निकल स्किल्स का सवाल है। तो आपको इसको कंटिन्यूअसली बढ़ाते रहना पड़ेगा। और वही नीचे लिखा है कि पहले ये न्यू करेंसी हो गई है। आपके पास अगर अच्छी स्किल है तो आपको ज़रूर जो अवसर मिलेंगे वो भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अब इसी के साथ मैं अमरेंद्र जी आपके और बात करेंगे ऑफ कैंपस ऑन कैंपस में। मैं शेयर करना चाहूँगा हेतल जी के साथ। 1 मिनट अगर आप देंगे तो। थैंक यू पीयूष। आपने जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करी है, मैं आराम से कह सकता हूँ कि जब मैं एक इंजीनियरिंग का छात्र था, अगर ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली होती तो मैं आज कहाँ का कहाँ पहुंच जाता। आपने जो 2 प्रोफाइल शेयर करी, शायद उसमें मेरा प्रोफाइल भी डाल देते, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की डिग्री है मेरी, लेकिन 22 साल के तजुर्बे में मैंने आज तक एक बिजली का बल्ब भी चेंज नहीं किया है। दूसरी चीज जो आपने शेयर करी, घर से दूर जाने को, मैंने स्कूलिंग भोपाल से की है, इंजीनियरिंग इंदौर से करी है, और जब मैंने वो भोपाल से इंदौर का जो 180 किलोमीटर का जो डिस्टेंस तय किया, तब मुझे लगा कि मैंने जिंदगी देखना शुरू करी है। तो सभी छात्रों से मैं जरूर कहूंगा कि अपने घर से जितना दूर जा सको उतना जाओ। घर के पास रहोगे तो तुम्हारी जो लर्निंग है उतनी भी वो भी सीमित रहेगी उस डिस्टेंस से। अब जब अगली बात आती है तो मैं अमरिंदर जी से कहूंगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है ऑन कैंपस ऑफ कैंपस के प्लेसमेंट्स के बारे में उसके चर्चा करें। उससे पहले आपको कोई भी सवाल हो, कभी भी ध्यान में आता है, तो प्लीज चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, एंड यू कैन रेज योर हैंड एज वेल। सही मौका मिलने पे हम आपको सवाल का चांस देंगे। एंड एक चीज मैं हर बार ऐसे सेमिनार में बोलता हूँ, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ डम क्वेश्चन, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ स्टूपिड क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन पे हम आपको जज नहीं कर रहे हैं। आपका जो भी सवाल है, झिझक
के झिझक किए बगैर पूछिए। ये वेबिनार इसीलिए रखा गया है कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अमरिंदर जी, यू आर नेक्स्ट। Yeah, thank you Vital जी, and thanks a lot पीयूष जी, you have आपने बहुत बढ़िया से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, मेरे लिए काम आपने आसान कर दिया। क्योंकि जो कैंपस प्लेसमेंट और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के बारे में मैं बोलने जा रहा हूँ, जो भी कंपनी के बारे में मैं बताऊंगा, उसमें बहुत सारे ऐसे हैं प्लेसमेंट में आएंगे आप लोग के कैंपस में, जिसमें you may be doing engineering in say mechanical or computer science, but you have to, your job profile would be entirely different. It is always a dream for any graduating student to get a or grab a job, and many people prefer IITs particularly because IITs are famous for campus placement, but this is now happening in other engineering institute as well. And good thing is that Askal, there are many companies available in India as well as abroad. So only thing that you need is that if you have certain skill set and your mindset is proper, and if you're competent enough, then you are definitely going to get a job. That is for sure. Now, please next slide, please. Next, please. Yeah. Next. Regarding on-campus placement, so it is obvious that your institute is going to help you for that, and every institute has a campus placement cell. It may be known as a different entity in your institute, but placement cell is has to be very active, and it has to be good. And in fact, as a student, it is also you can also contribute in strengthening your institute placement cell, because when I was a student in IIT Delhi, and even as a faculty member in IIT Guwahati here, what we used to do, that we used to suggest the placement cell, okay, आप ये companies available है मेरे area में, can you please call them for placement next time. So these suggestions are always welcome, because the placement cell में भी लोग होंगे, तो उनको तो सारे branches के बारे में और सारे companies के बारे में पता होता नहीं है. So placement cell को वो अच्छा करने के लिए you can also suggest, and I think this is an important step all of you should do. Next slide, please. तो पहली बात है, if you are interested in campus placement, on campus placement, you have to contact your placement cell, and then you just have to look at what are the companies that visited your campus in the last few years, and you can give your wish list to the placement cell. And I hope every department in your institute, each engineering branch, they have maybe a placement representative maybe there, and they may contact the placement cell. And one important point here is to have a proper placement brochure. Every department has its unique features, and accordingly they can prepare a placement brochure, and then when they are going to invite companies for campus placement, you can send a placement brochure, or you can have an overall placement brochure where information about various disciplines or branches can be put there, and these are the features, these are the course curriculum, and these are the things that is taught. And वो placement brochure को देख के एक the company may be interested to come and visit your institute. So making a good placement brochure is very critical. And next, please. So various companies having different profiles may come to your institute. जैसे कुछ कंपनीज जैसे प्रोडक्ट कंपनी होते हैं, आईटी एंड टेक बेस्ड कंपनीज भी होते हैं, स्टार्टअप होते हैं आजकल, एमएनसीज होते हैं जैसे गूगल, और आईटी बेस्ड कंपनीज विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और बहुत सारे कंपनीज हैं.
and core companies भी होते हैं, Tata Steel हो गया, then Vale, then Bharat Electronics. There are many companies are there which are specific to some branches. Some companies are open to all. In the next slide, I will show that. Next slide, please. जिसमें, for example, I'm just giving you a list of a few companies which are generally open to all. That means that irrespective your branch, you can sit in these companies interview, job interview. And for example, Amazon, Ola maybe you know Ola, but they need people who can develop work in their software development. Then there is a company called NoBroker, which is an Android-based companies where people having profile like they have to work like a data scientist, back-end, front-end, and product analyst. Then there are Flipkart is there. These are e-commerce companies, but you see, as an engineer, your work would be not to sell some stuffs there, but rather you have to develop their software or their product design, and a lot of things are there where an engineer can peep in and they can contribute. There is Adobe is there, you know, that's a software development company. And Walmart is also there, though it's a marketing or it's a you know about the Walmart, but there you have to work like a data scientist, software development. These companies are huge, and you can in fact maybe you can invite them for campus placement, or offline, off campus also you can try. Next one, please. Now here you see these companies are called core companies because they're specific to some branches. And for example, Microsoft, they generally prefer computer science and electrical students. Google is there, they generally prefer CSC, computer science, chemical, and EEE, electrical and electronics students. Oracle, then Goldman Sachs, Qualcomm, these are hardware companies where EC and EEE students can try. Bharat Electronics is there. Schlumberger is there where mechanical and chemical people are preferred. Airbus is there where mechanical engineering students are preferred. And these are ASC Infratech where civil engineering students are preferred because this is a construction company. So this way, many times what happens is that some of these companies have a separate branch also. For example, there are companies called Sri, there is Samsung research unit is there. One is Bangalore based, one is Delhi based. So one of the, I think Delhi one is open to all. Bangalore is specific to semiconductors, so they prefer only certain branch people. Another important point here is that some of the companies that may visit your campus are PSUs. Some PSUs visit campuses, but some PSU, they have their own off-campus things happen there. For PSUs, the GATE examination is extremely critical. I think Niden is going to talk about GATE examination. In fact, for certain PSUs, clearing the GATE examination is extremely critical. And if you can get a rank within 1500 or 2000, then there is a fair chance, generally up to 1500 as per the statistics shows, then there is a fair chance that you may get a call for interview in PSUs. So you can always take the GATE examination very seriously, and you should always keep that in mind. Next slide, please. So actually, to help you, what we have done is we have prepared a list of companies and organizations which are potential recruiters. And this list of companies, I'm just giving you some kind of a sample here. This list of companies I'm going to share with, we are going to share with you in the website. You can download this list of companies, and then you can share it with your placement cell, and then you can ask your institute placement cell that, okay, please, these are the list of companies with the web addresses given, please contact them, send the placement brochure, and invite them to our campus placement.
And if that happens, suppose out of 100 odd companies, even 50 companies or even 40 companies come, that is also going to be very good for you. And next slide, please. Sometimes what happens is that you may not get a job in the on-campus placement because maybe very few companies visited your institute, or there were some companies which visited is not of your interest. In that case, don't get disheartened. There are ample opportunities these days. Certain few things that you can do. First of all, you can consult a career consultant group, or there are a lot of career consulting agencies are there. They will give you the proper advice looking into your profile, that which company you should try. And there are many times in different cities workshops happens. You can attend those workshops. There also you will get ideas. Then please, you always have to, in the second thing is that you should not sit idle. You should keep on looking for jobs. You should keep your eyes open. There are opportunities everywhere. If you are competent enough, if you are honing your skills properly, tuning your skills properly, you are definitely going to get it. And also sometimes what you can do is you can get your guidance from your seniors. It is very, or your mentors, professor, your friends, that you can always do that. They will give you some guidance. You have to have a very good resume, and this resume you should prepare very professionally, looking into the profile of a particular company. Only thing that you have to always be careful is that don't exaggerate anything in your resume. You have to be extremely truthful when you are preparing your resume. Only those things you mention that you are well aware of, that they are correct, they are true, then you are always safe. And yeah, then sometimes some referrals and these things also happens, helps while looking for jobs in the off-campus mode. In the next slide, please. So finally, what I'll say that your placement is primarily dependent on you, and your skill set plays the most important role. As my spiritual guru Om Swamiji Maharaj says in his The Heart of Success book, there are 6 factors that actually plays for your success. One is you yourself, how you are approaching your stuff, your that is Odhisthana approach, your competence, your kausal, and your resources, effort, that is most important, and finally your destiny. So these are the factors that you have to always keep in mind. And what I will say that finally, as a student, you can always there are if you put adequate effort, resources are already there with you. If you do enough, make enough sesta or effort, then I am sure success will be yours. So thank you so much. If you have any question, you please write it in the chat box. I will try to answer that at the end. Now over to Niren, please. Thank you, Amren, and that's wonderful. And it's a beautiful approach what you shared, as Hetal already mentioned that अगर ऐसा हो जाए, हमको पहले मिला होता तो आज कहाँ से कहाँ रहते। इतनी सारी रिसोर्सेस सब आके मिल के हमको सिखा रहे हैं। और बहुत शानदार, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अपना, मैं आपको नंबर 4 और नंबर 5 पे ज़्यादा बात करूँगा, जो अमरेंद्र ने कहा कि रेज्यूमे बनाना। और आपको बहुत सारी अवेलेबिलिटी है, बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। मैं आपको सिंपल तरीके से ही बात करूंगा कि उन जॉब्स को अप्रोच इंडिविजुअली कस्टम तरीके से आप कैसे करेंगे एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव। यदि मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूं तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, या थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूं तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मुझे इंटरेस्ट कहाँ आया या कहाँ आ रहा है। क्योंकि बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड से आगे बढ़ने के लिए कंपनीज ये देखती हैं आपकी स्किल्स क्या है। सबने कहा स्किल्स, और पीयूष जी ने बहुत शानदार तरीके से सारी स्किल्स को इलैबोरेट तरीके से बताया। बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में हमें पता भी नहीं। तो यदि आपने चैनलाइज किया कि आपको कंप्यूटर साइंस में जाना है,
या कोर इंडस्ट्री में जाना है, मतलब आपको सिविल इंजीनियरिंग का काम करना है, मैकेनिकल करना है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करने का है तो आपको सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ेगी। आप सोचेंगे कि मैं यूट्यूब में एक मूवी की तरह देखूंगा और मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, नहीं होगा। तो यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो इसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स मैं कहता हूँ। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, जो समर होता है, आपको कुछ विंडो मिलता है 2-3 महीने का, या विंटर्स में 1-8 महीने की छुट्टी मिलती है, तो आप अभी से एक ट्राई कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं कि आप कोई जॉब पार्ट टाइम में करें। ये जॉब पेड हो जरूरी नहीं, तो ये आपकी लर्निंग जॉब है, तो इसको इंटर्नशिप कहा जाता है। इंटर्नशिप जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी कंपनीज में करनी है, आप लोकल, आप जहाँ हैं वहाँ पे भी आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है जो लोकल क्लाइंट्स को सपोर्ट करती था, उनके पास भी जाके फिजिकली जाके बोल सकते हैं मुझे छोटा सा काम करने को दीजिए, मैं फ्री में करूंगा या फ्री में करूंगी, और आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सो दैट एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यू कैन शो। कहाँ शो करेंगे आप? आपके रेज्यूमे में। रेज्यूमे में काम इसलिए करना है क्योंकि आपको जॉब मिलने से पहले आपको रेज्यूमे बनाकर, आपका डोर एंट्री कब होती है किसी भी कंपनी में? रेज्यूमे के साथ। तो पहले कंपनी आपको नहीं मिलेगी, आपके रेज्यूमे से बात करेगी। तो रेज्यूमे में आपने क्या क्या लिखा है, उस बातचीत के लिए आपको रेज्यूमे तैयार करना है। तो ये आपका काम की तरफ बढ़ाती है, आप कैसे काम की तरफ जॉब अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, पाथ टू योर वर्क, यही मेन चीज है। इंटर्नशिप करना, जैसे सभी ने कहा कि आजकल इतना इजी हो गया है ऑनलाइन करना, तो मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 इंटर्नशिप कर रहे हैं। कैन यू इमेजिन? ये वो बच्चे हैं, आप और हम जैसे ही हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, बस उन्होंने थोड़ा एफर्ट और ज्यादा चेष्टा, जैसा अमरिंदर ने कहा कि ज्यादा चेष्टा की तो उनको 4 इंटर्नशिप मिल गई। और ऐसा नहीं कि उन्होंने मना किया, चारों को कर रहे हैं। और जरूरी नहीं होता है कि 6 महीने की इंटर्नशिप हो या 3 मंथ की हो या 2 मंथ की हो, 15 डेज की भी इंटर्नशिप होती है। एक छोटा सा टास्क लेके भी आप काम कर सकते हैं। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि हम जैसे, आप बहुत सारे मेंटीज हमारे इसमें हैं, आप सबसे मिले भी हैं, कि आपको आप कहेंगे कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं। अगर आपके पास इंटरनेट है तो आपके पास पूरे रिसोर्सेस हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपके पास 100% रिसोर्स हैं। कुछ वेबसाइट यदि आप देखेंगे, internshala.com, आप जाएं, वो बहुत अच्छे से आपको सपोर्ट करते हैं। उसमें आप ऑनलाइन जाके आप अपने आप को रजिस्टर करके आगे बढ़ के, फ्री में भी जॉब करना है या पेड जॉब, अनपेड जॉब, उसमें सारी कैटेगरीज हैं। नाउ वर्चुअल इंटर्नशिप्स भी वैसे ही प्रोग्राम है जो वो कहते हैं कि अगर आप हमारे से इंटर्नशिप किए हैं तो आपको हम जॉब भी दिलाएंगे। सो आपको तैयार कर देते हैं स्किल्स के साथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि असेसमेंट आपका स्किल से हो। जो बुधामी में भी हमने बहुत अच्छे तरीके से प्लेटफॉर्म बनाया हुआ, उसमें भी आपने एक्सप्लोर किया है, नहीं किया तो करेंगे जरूर। और जो ऑनलाइन कुछ कोर्सेज हैं जो फ्री में भी अवेलेबल हैं, यूट्यूब तो सिर्फ मूवी देखने के लिए या गानों के लिए नहीं है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें उसमें अवेलेबल हैं, तो आप सर्च करिए, फ्री कोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल हैं। और edX.org MIT का इनिशिएटिव है, और MIT से आपको फ्री में कोर्सेज मिलते हैं। तो आप कोई सर्टेन टॉपिक आपने डिसाइड किया है तो आप उसमें पढ़ना शुरू करें। फिर एक कोर्सेरा IBM का ग्रुप है, IBM भी बहुत अच्छे से आपको ट्रेन करेगा, उनके प्रोडक्ट्स में भी आप ट्रेन हो सकते हैं। और जो लेटेस्ट अभी डेटा स्टैटिस्टिक्स एंड एनालिटिक्स, AI, बहुत सारी चीजें जो चल रही, मशीन लर्निंग, सब आपको उसमें मिल जाएगा। दिस इज वेरी स्पेसिफिक टू कंप्यूटर साइंस। फिर आप सिंपली लर्न, ये भी एक चार्ज बेसिस में भी है और फ्री बेसिस में भी अवेलेबल है। गवर्नमेंट का सबसे बहुत अच्छा इनिशिएटिव रहा है स्किल्स के लिए, कौशल के लिए, तो nptel.ac.in, इसमें यदि आप जाएंगे, दिस हैज गॉट एवरीथिंग। आप जिस फील्ड में जाना चाहते हैं, जिस फील्ड में लर्न करना चाहते हैं, जिस स्किल को डेवलप करना चाहते हैं, उसका आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एंड वेरी नॉमिनल चार्जेस, वेरी मिनिमम चार्जेस में आप पढ़ाई कर सकते हैं, few hundred rupees फॉर एग्जाम्स ओनली। कोर्स इज फॉर फ्री। सो आप बहुत अच्छे से इस कोर्स को, वहां पे जो भी कोर्स आपको करना है पैरेलल में, सेकेंड ईयर से, फर्स्ट ईयर से बच्चों को शुरुआत कर सकते हैं। जिसमें कि अगर आप मैकेनिकल में, आपको कंप्यूटर में जाना है, आप कंप्यूटर वाले हैं, आपको AI में जाना है या मशीन लर्निंग में जाना है, तो आप कुछ कोर्सेज एक्स्ट्रा कर सकते हैं।
और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उस प्रोजेक्ट को आप अपने रिज्यूमे में शो कर सकते हैं। तो ये इससे आपका एक स्किल भी डेवलप होगा और आपका रिज्यूमे भी तैयार होगा। रिज्यूमे आपका एंट्री पॉइंट है, याद रखना। आपको रिज्यूमे को अच्छे से पॉपुलेट करना है अच्छी आइटम से। तो उसमें बहुत एक अच्छी आइटम आती है कॉम्पिटिशन्स। यदि आप कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स होती हैं, प्रोग्रामिंग की, प्रेजेंटेशंस की, कम्युनिकेशन स्किल्स की, बहुत सारी कॉम्पिटिशन्स होती है जिसमें आप शो कर सकते हैं कि मैंने इस कॉम्पिटिशन में भाग लिया, मैं टॉप 10 में था या टॉप 5 में हूँ, या मेरे को पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट मिला। यू कैन हाईलाइट इट। तो ये आपके रिज्यूमे में पॉपुलेट हो सकता है। फिर आपके एम्प्लॉयबिलिटी प्रोग्राम्स का एक बहुत अच्छा फिनिशिंग स्कूल वर्क इनटू द वर्कफोर्स का एक कॉन्सेप्ट है, forage.com। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, इसको आप जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। और ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, आपको रिज्यूमे तो पहले देना पड़ेगा। कंपनी आए या ना आए, आपका रिज्यूमे तैयार करना है। तो योर मेन पर्पस इज टू डेवलप योर रिज्यूमे। अदर देन दैट ये वर्क हुआ। यदि आप चाहते हैं कि, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, यदि आप चाहते हैं कि आप पढ़ाई करें, कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होता है कि पढ़ाई करना है, जैसे हमारे अंदर भी कुछ हैं साथ में जो पढ़ते हैं, आज भी पीएचडी कर रहे हैं, बहुत शौक है, हमको भी शौक है लर्न करने। लर्न करते करते ये नहीं जरूरी नहीं है कि हम एज देखें या हमारी करंट सिचुएशन रिक्वायरमेंट है तभी हम पढ़ाई करें। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट हैज टू बी देयर एवरी डे। आप स्किल्स डेवलप करेंगे तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा ये है कि यदि आपने डिसाइड किया है कि बीटेक या बीई या बीएससी के बाद यदि आपको हायर पीजी करना है, एमटेक है, एमबीए है, तो एमटेक या एमबीए करने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ेगी गेट। और एमबीए के लिए बहुत सारी एग्जाम्स, एक कॉमन है वो कैट एंड मैट, दोज आर 2 एग्जाम्स व्हिच यू कैन गिव। गेट यदि आप देते हैं, दैट्स वेरी कोर एग्जामिनेशन फॉर योर इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव, जैसे सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसका स्कोर यदि आप रिज्यूमे में शो करते हैं तो उसका वेटेज बढ़ जाता है, आपके पेपर का वजन बढ़ जाएगा रिज्यूमे का। यदि आपने कैट या मैट या कोई भी एग्जाम दी है, उसमें कोई रैंक आया है, उसके आपका पेपर का वजन बढ़ जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन आपने एग्जाम दी, उससे आपके क्वालिफिकेशन हो गई। So that is what is required. GRE and GMAT are the 2 exams for international studies. Graduate record examinations आप PG कर सकते हैं, and in any field अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं वो इंटरनेशनल स्टडीज के लिए। GMAT भी वैसा ही इंटरनेशनल स्टडीज के लिए है। एंड many colleges in India also give weightage to those course. Now what I would say in closing my comments, यदि आपके पास, बिफोर यू गो टू द लास्ट स्लाइड, जस्ट आपने जो रेज्यूमे बनाया उसमें आपको इंपॉर्टेंट स्किल्स ऐड करनी है, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स ऐड करने हैं जो 2 से 3 या 3rd ईयर, 2nd ईयर, फाइनल ईयर तक में, एंड उसका वजन बढ़ाना है। तो उससे आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स तीनों को उसमें हाईलाइट करेंगे। सो दैट वुड लीड यू टू द नेक्स्ट स्टेप। सो ओवर टू हेतल। Yeah, before Megha takes up the next slide, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका जीमैट या जीआरई में अच्छा स्कोर आता है तो नीरज जी को प्लीज़ मिठाई का डब्बा भेजिएगा। और जब आपकी जॉब लग जाती है इतनी बेहतरीन कंपनियों में तो प्लीज़ अमरेंद्र जी को याद करना मत भूलिएगा। मेघा, ओवर टू यू। So next we will take up on startups. अब हम लोगों ने कंपनीज के बारे में बात करी, आगे पढ़ाई करने के बारे में बात करी, तो एक चीज आती है स्टार्टअप्स की। तो स्टार्टअप में 2 पहलू हैं। पहली बात तो ये कि स्टार्टअप में जॉब करना चाहिए या बड़ी कंपनी में काम करना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा अमरेंद्र जी ने जो मेहनत करके जो लिस्ट बनाई है उसमें सब बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम शामिल हैं। उसमें जोमेटो या मेक माई ट्रिप या फ्लिपकार्ट, ये जो स्टार्टअप्स जो काफ़ी बड़ी हो चुकी है, इनको स्टार्टअप कहना मैं उचित नहीं समझूंगा, लेकिन उनमें भी जो जॉब्स हैं उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को भी हम अनदेखा नहीं कर सकते। एक चीज़ ये रहती है कि बड़े कंपनी में जॉब सेटल्ड रहती है, कंपनी एकदम सेटल्ड है, सिस्टम पूरे एस्टेब्लिश्ड हैं, जबकि स्टार्टअप में काफ़ी रिस्क का एलिमेंट रहता है क्योंकि कंपनी उस पायदान तक नहीं पहुंची है कि उसको आप डिपेंडेबल माना जाए।
तो ये एक रिस्क एलिमेंट रहता है, एंड आई विल रिक्वेस्ट मेघा टू कैरी फॉरवर्ड ऑन दिस फ्रॉम हियर. Megha, are you there? Hi, Hetal. Can Yeah. you hear me? So sorry. Yes, very much, please. Okay. Thank you so much. Hi, sorry everyone. I'll just quickly introduce myself. मैं cybersecurity में about 15 years of experience, and I'm taking up this slide because I tried in the startup of my own, and why I'm saying had is because I ran it for 1 year and then मैं बेचा है, और अभी भी वो चल रहा है. मैं कुछ और उसमें करके फिर आगे बढ़ने वाली हूँ. बस 30 seconds लूंगी और मैं ये बोलूंगी कि स्टार्टअप आजकल एक बहुत ही दिमाग में स्टार्टअप चलता है. कोई स्टार्टअप में काम करना चाहता है, तो कोई स्टार्टअप खोलना चाहता है कि अपनी कंपनी होगी तो बढ़िया रहेगा. बट रिमेम्बर द पॉइंट्स जो मैंने जब स्टार्टअप में काम किया है, अपना स्टार्टअप चलाया है, तो कभी नहीं करी. तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, आपको बहुत मल्टीटास्क करना है. आपके पास इतना पैसा नहीं होता कि आप हर चीज के लिए सबको रख लो. करना है, आपको वो रिस्क लेके चलना है कि आपके साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, आपको उनकी सैलरी देने से गुजरना है. But it is so interesting. It is you need to have करना है, और फिर आप आगे बढ़ते चले जाओगे. अगर मैं अपनी स्टोरी में से कहूँ तो आपके लिए एक दिन में बैठे बैठे कुछ नहीं होगा. आप एक्सपीरियंस लो, आप अपनी सोचो कि मुझे किस तरफ जाना है, और यू हैव टू बी ओपन फॉर आइडियाज. मैं और मेरी फैमिली में और कुछ लोग थे, हम सबको एक अपॉर्चुनिटी दिखी. उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी के लिए अपनी बहुत अच्छी जॉब छोड़ सकूं. मेरी प्रमोशन लिटरली, जिसके लिए मैं 3 साल से काम कर रही थी, मैंने उसको छोड़ा. मैंने अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी, और I was literally crying because it was a big risk of my life, but it was so fruitful. You have to seek out for opportunities. आपको सही जगह पे, सही अपॉर्चुनिटी में, अगर आपको अपना एक स्टार्टअप खोलना है. और जो नीचे मैंने कुछ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, बस वही है. खोलना है तो सबसे पहले आप सोचो कि आप क्या करना चाहते हो, और अभी मत सोचो, अभी पैशनेटली चलो. नरेंद्र जी ने जो बोला, पीयूष ने, अमरेंद्र ने जो बोला, आप उस करो, एक्सपीरियंस गेन करो, ओपन रहो. सिर्फ आइडियाज के लिए ओपन रहो. अपने से इम्पोर्टेंट कोई चीज नहीं हो सकती. एंड रिमेम्बर, स्लाइड्स तो बाद में होती रहेंगी. ये एसबीए आपको दे रहा है. इतने हम लोग सारे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं यहाँ पे, नेटवर्क है. Try to use this resource as much as possible. Reach out to us. That's why we have opted this forum, right? तो आपको इससे बड़ा रिसोर्स सेंटर कहीं नहीं मिलता. हमारे डिफरेंट एरियाज के हम लीडर्स हैं, different areas की expertise. Was get your network strong, have the right capabilities. The second step is वो रिस्क ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ, या ले सकती हूँ. और थर्ड है आपको अपने path की one. But once you have the right experience, you have the right support system. It's a wonderful world to be in, and startup it's just amazing to be over to you. Thanks, Megha. And continuing forward, entrepreneurship में जो मेघा ने बताया है, ये कठिन डिसीजन है. एंड अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, तो आपके इंजीनियरिंग के इमीडिएटली बाद आपको तजुर्बा सबसे ज़्यादा जरूरी है. प्लीज ट्राई एंड सी इफ यू गेट अ जॉब, देन यू शुड डेफिनेटली टेक अप द जॉब. अगर आपको जॉब में रस नहीं आ रहा है, अगर वो जॉब सही नहीं चल रहा है, तो आपके पास दोनों ऑप्शन बन जाते हैं. या तो आप आगे पढ़ाई करें, अपने आप को और स्किल में एनहांस करें, या फिर अपना स्टार्टअप शुरू करें. एंड स्टार्टअप में बहुत चैलेंजेस आते हैं, बहुत कठिनाइयाँ आती हैं. मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है पिछले 8-10 साल में, जब से स्टार्टअप बहुत कॉमन हुआ है. लोग सक्सेस के बारे में सब बात करते हैं, फेलियर के बारे में कोई बात नहीं करता है. और फेलियर के बारे में इसलिए बात नहीं करते हैं लेकिन क्योंकि लोगों को शर्म आती है फेलियर के बारे में बात करने के लिए. बट
आप जैसे स्टूडेंट्स को फेलियर के बारे में भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है जानना जितना सक्सेस के बारे में। एंड स्टार्टअप में सक्सेस परसेंटेज 10% रहता है, मतलब अगर 10 कंपनियां सक्सेसफुल चालू होती हैं उसमें से एक सक्सीड होती है और 9 फेल होती हैं। इस परसेंटेज को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब भी आप ये डिसाइड करें कि अगर आपको स्टार्टअप के वर्ल्ड में जाना है। मैं इसके साथ यहाँ प्रेजेंटेशन को एंड करूंगा। एक समरी सिंपल सी है, कंटेम्पलेट योर एस्पिरेशन, मतलब आपने जो प्लान किया है उसको एक बार कहीं लिख दीजिए, अच्छे से लिख दीजिए आप आगे क्या करना चाहते हो, जो भी आपके माइंड में। फिर उसके प्लान करिए कि कैसे आगे जाना है, पढ़ाई करनी है, काम करना है, कहाँ काम करना है, किस टाइप की कंपनी में काम करना है। एंड फाइनली एक्शन, मतलब सबको एग्जीक्यूट करिए, अपने जो आइडियाज हैं उसको एग्जीक्यूट करिए। हम लोगों ने आपको काफ़ी गाइडेंस दिए हैं कि आप क्या क्या कर सकते हो। ये प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट और इसके साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास है, प्लीज़ उसको ढंग से पढ़िए, और आपके पास काफ़ी टाइम है, और हम में से किसी से भी आप आगे कांटेक्ट करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसके साथ हमारा प्रेजेंटेशन पार्ट कंप्लीट होता है, एंड वी आर सॉरी दैट इट टुक लॉन्गर देन व्हाट यू वांटेड टू, बट नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चंस। एंड मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने ऑलरेडी क्वेश्चंस रखे हैं सामने। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेना चाहूँगा आयुष का, जो लिखता है should we go for higher studies or rather get a job and gain experience? Will we be on the same page in both of these cases? Piyush, you would like to take this question? Sure. I'm sorry, I forgot the name of the person who is Ayush. Ayush. हाँ जी. So Ayush, I think there are pros and cons in both. I think if you work for a couple of years before going for higher studies, that sort of gives you an idea about how the organization works, what are the various processes, and you also get to talk to some professionals to understand आगे क्या जरूरत पड़ेगी, क्या कर सकते हैं। तो वो एक एडवांटेज है। डायरेक्टली अगर जाएं आप विदाउट वर्क एक्सपीरियंस, तो उसमें फिर आपको जैसे मास्टर्स करना हो तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन अगर आप उसके भी आगे पीएचडी या हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं तो वहाँ थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस आपके ज़रूर काम आएगा। एंड जैसा हेतल जी बोल रहे थे, कुछ भी आगे बढ़ने के पहले वर्क एक्सपीरियंस जरूर लीजिए, क्योंकि आपको फिर बहुत कुछ जानकारी मिलती है 1-2 साल काम करने पर भी। तो ये रहेगा मेरा आगे। हेतल जी, आप कुछ बताना चाहें? थैंक्स पीयूष। नहीं, आई थिंक आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आपको सही उसी लाइन में रहना है, तो अगर आपको टेक्निकल फील्ड से टेक्निकल में ही जा रहे हो, आप अगर इंजीनियरिंग से एमटेक की तरफ जा रहे हो, तो तजुर्बा हो ना हो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक बार पक्का कर लिया है इस लाइन में, आपको और स्कोप है कि आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली एमटेक में जॉब अपॉर्चुनिटीज बीटेक से ज्यादा ही रहेंगी। लेकिन अगर आपको जॉब, अगर लाइन चेंज करनी है, अगर आपको एमबीए की तरफ जाना है इंजीनियरिंग के बाद, कई लोगों का रहता है कि तकनीकी फील्ड में काम नहीं करना है, उनको सेल्स में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, तो उस केस में तजुर्बा बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सीधे इंजीनियरिंग के बाद एमबीए में मत जाइए। मैंने गलती करी थी, मैंने सिर्फ 6 महीने का गैप था मेरा इंजीनियरिंग और एमबीए के बीच में, और मेरे साथ काफी लोग थे जिन्होंने तजुर्बा, एक्सपीरियंस उनका काफी था, और मुझे लगा आई थिंक दे वर बेटर ऑफ देन मी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लेके आए थे, उनको पता था उनको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान देना है, किस पे कम देना है। मैं सबको इक्वली देख रहा था। दूसरा क्वेश्चन नीतीश का है, आई वुड रिक्वेस्ट अमरेंद्र टू लुक एट इट। नीतीश सेज दैट his college is a tier 3 college, and he's not fortunate enough for companies to come on campus, and how he should approach. I know आपने अपने presentation में थोड़ा touch किया है, but maybe just for Nitish sake you might just want to reiterate कि क्या करना चाहिए नीतीश को। ओके नितेश, डोंट वरी, तुम हमेशा ऑफ कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हो। जो कंपनी का लिस्ट हम लोगों ने दिया है, तो उसमें जो भी कंपनी का वेब एड्रेस दिया हुआ है उसमें यू कैन विजिट दैट लिंक, और वहाँ हमेशा एक कांटेक्ट करके होता है, यू कैन राइट टू देम। और अनदर थिंग कि बहुत सारे कंपनीज क्या होता है, वो वेरियस सिटीज में अपना रिक्रूटमेंट ड्राइव करते हैं। दे कॉन्डक्ट एग्जामिनेशन इन वेरियस सिटीज है, टीसीएस करता है ये, पहले इन्फोसिस वगैरह भी करते थे। तो इस टाइप के बहुत सारे इंस्टीट्यूट है। तो डोंट वरी अबाउट इफ सम कंपनी इज नॉट विजिटिंग योर कैंपस, you can always try go for off campus. I think I saw a question regarding how to approach these companies in the chat box, तो वो भी मैं आंसर दे देता हूँ। उसके लिए एक तो प्लेसमेंट सेल जो है आप लोग का इंस्टीट्यूट का,
that can help you. अगर वो है नहीं तो you can always write to them, you can always contact the HR. सारे कंपनीज में एक HR होता है, HR पर्सन होता है जो या तो एक करियर का एक उनका ब्रांच होता है, एक सेल होता है जो रिक्रूटमेंट अगर आप देखते हैं तो उन लोगों को लिखा जा सकता है, एंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट देम बाय सेंडिंग योर रेज्यूमे कि आप ये इंटरेस्टेड हो, ये हो. और अनदर थिंग मेनी टाइम्स इट हेल्प्स कि अगर आप जो कंपनी को आप टारगेट कर रहे हो उनको लिख के एक इंटर्नशिप, हाँ जैसे नीरेन जी बोले थे, इंटर्नशिप कर लेंगे तो यू विल हैव अ गुड आइडिया कि वो कंपनी में चल क्या रहा है, उसका वर्क एनवायरनमेंट, वर्क स्ट्रक्चर कैसा है, सब क्लियर हो जाएगा. एंड दे मेनी टाइम्स दे प्रीफर टू रिक्रूट देयर इंटर्न बिकॉज योर इंटर्न इज जनरली familiar with what is going on in the campus, in that organization. Ravi, you want to add something more on this? Yeah, so I was only going to say कि कई बार कॉलेज के जो alumni होते हैं, आपके कॉलेज के जो सीनियर है, उनसे कांटेक्ट करने से भी बहुत बेनिफिट मिलता है. यूजुअली हम लोग सीनियर को ही ट्रैक करें तो उससे कई बार आपको बहुत सी जगह वो मिलेगा, तो उसका आप डेटाबेस बनाए, लिंक्डइन से यूज करें और फिर आउटरीच करें. हाँ, बहुत बढ़िया. अगला सवाल सोनाली का है और उन्होंने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स में कैसे बैलेंस रखा जाए. Naren, you want to take this question? How do companies give importance between soft skills and technical skills? Very simple, based on the role. सबसे पहले तो आप जो कंपनी आती हैं दोनों को वेटेज मिलता है, बहुत हैवी वेटेज रहता है प्रेजेंटेशन में, बिकॉज टेक्निकल स्किल्स तो स्कूल 4 साल से असेसमेंट हो रही है. आपने स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, सारे सब्जेक्ट्स पढ़े, तो आपने मार्कशीट दिखाई तो उससे आपका टेक्निकल स्किल्स एंड नॉलेज का टेस्ट हो गया. सॉफ्ट स्किल्स का टेस्टिंग का कोई मेजरमेंट नहीं है. सो व्हाट दे डेफिनेटली गिव एक्स्ट्रा वेटेज फॉर प्रेजेंटेशन एंड सॉफ्ट स्किल्स. सो आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, और अपने रिज्यूमे में आपने कैसी टीम प्लेयर, कोलैबोरेशन वर्क और कॉम्पिटिटिव प्रेजेंटेशंस या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपने दी हैं, उससे ये शो होता है कि आपका स्किल्स एक्स्ट्रा है. तो आप वेटेज ऑफ सॉफ्ट स्किल थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा फर्स्ट इनिशियल रिज्यूमे पुटअप के लिए. ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है. सो सॉफ्ट स्किल सही बात कही निरेन आपने. और जो इंटरव्यू होता है वहां पे सवाल के जवाब से ज्यादा सवाल के जवाब कैसे दिया है वो सॉफ्ट स्किल में टेस्ट हो जाता है. बिल्कुल सही बात कही. एक क्वेश्चन मेरे को आया है धीरज से, एंटरप्रेन्योरशिप पे है, बट ही इज इन अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट इन सिविल डिपार्टमेंट, तो सिविल इंजीनियरिंग में पहले फर्स्ट ईयर में है, और ये पूछ रहे हैं आई वांट टू स्टार्ट माय ओन कंपनी एंड हाउ शुड आई प्रोसीड. So, and which skill should I master that will help it? तो मैं पहला पार्ट आंसर करूंगा and I will request Megha to take up the answer on the skill part. So, फर्स्ट ईयर है, आपके पास 3 साल और हैं. मेरा सबसे पहली रिक्वेस्ट, प्लीज अपनी डिग्री कंप्लीट करिए. मैं जानता हूँ रितेश अग्रवाल ने IIT में 3rd ईयर में अपनी डिग्री छोड़ के ओयो चालू करी एंड आज वो कंपनी बहुत ऊपर पहुंच गई, बट आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड एग्जांपल. तो पहला तो आपको डिग्री कंप्लीट करनी है, तो अगले 3 साल आपको कॉलेज में ही रहना है. इंजीनियरिंग करने के बाद ही अपना स्टार्टअप शुरू करना है. अंग्रेजी में एक शब्द होता है साइड हसल, तो आप इसको एक साइड हसल की तरह लीजिए. अपने आइडिया को मजबूत करिए. जो आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है, वो यूजर कौन है, कस्टमर कौन है, उसको मिलिए, समझिए कि ये सही है कि नहीं है. दूसरी चीज, एंटरप्रेन्योरशिप में टीम बहुत ज्यादा जरूरी है. आप अकेले काम मत करिए. जहां तक हो सके अपना कोई भाई बहन हो या फिर आपके कोई क्लासमेट हो या आपके कोई फ्रेंड हो अच्छे, जो उसके साथ आपकी तालमेल अच्छी है एक, और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्किल आता हो. अगर आप तकनीकी एरिया में आप स्मार्ट हैं तो आप कोई सेल्स और मार्केटिंग बंदे को साथ में रखिए जो ज्यादा सेल्स में हो, बिकॉज ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है. तो ऐसी कुछ चीजें हैं कि आइडिया को बिल्डअप कर दिए, कस्टमर से जानिए कि ये प्रोडक्ट की सही में जरूरत है कि नहीं, को फाउंडर ढूंढिए. ये 3-4 चीजें बिल्डअप करिए, एक सेटअप करिए और उसको टेस्ट आउट करिए. तब तक आपका 4th ईयर हो जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगी. उसके बाद अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप इससे पैसा बना सकते हैं. हम लोग आइडिया पे कंपनी नहीं चालू कर सकते, वो आइडिया को मोनेटाइज, मतलब उससे पैसे कैसे निकलेंगे आपके, वो बहुत ज्यादा जानना जरूरी है. मेगा, यू वांट टू ऐड ऑन द स्किल पार्ट? या एब्सोल्युटली. अपनी स्टार्टअप में मतलब पहला एम्प्लॉय ढूंढना मेरे लिए बहुत बड़ा एक बैटल था.
कि who wants to be the first employee. तो जैसे मेरे लिए एक ही चीज काम करे, आप मेरा जाके देखो रेज्यूमे, तो जब वो मुझे लिंक्डइन पे देखते थे और देखते थे कि मैं कितना अपनी कंपनी पे विश्वास करके बैठी हूँ, तो वो आ जाते थे. तो बेसिकली जो लीडर है, एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा उसको, वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी. और मैं उनसे बात करती थी, मैंने 1-1 घंटे लोगों को, और वो आ गए थे फिर. तो और दूसरी चीज ये कि आपको वैसे ही लोग चाहिए जो वो ज़ील हो. तो wait for the right person and they will be willing to join you, but you need to set an exact team. Yeah. Thank you. Arushi ने पूछा है, I'm a first year student, I have no idea where to start. So Arushi, I think Piyush, you want to take this answer? Just take this question. Where to start? She's in first year. What she should be doing as a first year sure, student? हेतल. आरुषि, पहले तो आपको बहुत खुशी की बात है कि आपने ये प्रश्न किया. बहुत कम लोग करते हैं जो ऐसा बात पूछते हैं, हालांकि उनके दिमाग में चलता रहता है, तो अच्छी बात है. लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है. आपको एक चीज जरूर करनी होगी कि आपको ये ढूंढना होगा कि आपको किस चीज में रुचि है, और वो जरूरी नहीं कि इंजीनियरिंग ही हो. आप फर्स्ट ईयर में हैं, आप फर्स्ट ईयर के इंजीनियरिंग में हैं, लेकिन मैं अगर आपको बोलूं कि आरुषि, आपके पास 2 महीने हैं, आप क्या करना चाहेंगी, किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, वो थोड़ा मालूम करने की कोशिश करिए. और फिर हो सकता है, जस्ट एज एक उदाहरण, कि आपको फैशन डिजाइन में इंटरेस्ट हो. ठीक है, तो ठीक है, लेकिन जो आपका जो क्षेत्र है आजकल, कंप्यूटर साइंस सब क्षेत्र में लगा हुआ है, तो आप कंप्यूटर एप्लीकेशंस को फैशन डिजाइन में कैसे करेंगे, वो भी कर सकते हैं. तो आप ऐसा बाउंड मत करिए अपने आप को कि मैं ये कर रही हूँ तो ये होगा. ऐसी चीज नहीं है. आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करिए कि आपको किस चीज में रुचि है, किस में आपका पैशन है. Thanks, Piyush. Saksham ने सिविल सर्विसेज के बारे में पूछा है. Ravi, you want to take this question? Yeah, so I will say मेरा बहुत direct experience नहीं है, although I am working in a lateral entry, so I have kind of a role. So I have seen people who prepare. मैंने 2-3 चीजें देखी हैं, observe किया. एक तो some people go for an MTech कई बार and prepare for civil service. क्योंकि but not from a tier 1 college, from a tier 2 college. क्योंकि tier 1 का MTech और masters is little hard, so they do that as a plan B. That is one thing I have seen. And I have seen some people still continue to build their profile, in government sector, अगर आपको consulting role मिल रहा है, because उसका भी बहुत value है if you already are exposed to the government. So don't take it as a plan B. मतलब you can still continue to work. That is the other thing I have seen. In fact, some of our colleagues which we work with, they are preparing for UPSC. मेरे batch में जो हमारा fellowship है Indian Administrative, 2 of them are actually preparing. The junior batch, those who are eligible. हम लोग तो what we have seen is कि वो लोग गवर्नमेंट में एक्सपीरियंस पहले से ले रहे हैं, जिससे कि उनको हेल्प हो इंटरव्यू आंसर्स में, और दे आर ऑलरेडी ओरिएंटिंग देयरसेल्फ टुवर्ड्स द पॉलिसी मेकिंग एटसेट्रा. सो दोनों ऑप्शन मैं बोलूंगा. यू कैन टेक अ लाइट वेट और यू कैन गो इनटू पॉलिसी कैरियर्स. थैंक्स. नहीं रवि, मैं जानता हूँ आपका नहीं एक्सपीरियंस, लेकिन आपने जितनी पढ़ाई करी है वो सिविल सर्विस से कुछ कम नहीं है. अगर स्टूडेंट्स को पता नहीं है तो रवि ने MBA और MTech दोनों करे हैं, और MTech किया उसने IIC बैंगलोर से, और MBA किया है ड्यूक यूनिवर्सिटी इन, तो उनका एक्सपीरियंस काफी है. Niren, I would like you to take this question from this one is from Akash. IT students, Mr. Akash said that after graduation they get into service based. To be very frank, students have no idea, many students have no idea that a service based company or product based company इनिशियली एक जो ड्राइव होता है स्टूडेंट्स का, जो पॉज देना है कि जॉब ले लें, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट एंट्री. इजी टू एंटर इज द सर्विस इंडस्ट्री. वेरी फ्रैंकली इट्स वेरी इजी टू एंटर द सर्विस इंडस्ट्री. प्रोडक्ट कंपनीज में एंट्री इज लिटिल चैलेंजिंग बिकॉज आपके स्किल्स का बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसमें, और प्रोग्रामिंग एज वेल एज योर एक्सपोजर टू डिफरेंट टेक्नोलॉजी एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज उसमें थोड़ी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू भी एक नहीं होंगे, उसमें 2 से 3 राउंड्स होते हैं. टेक्निकल राउंड होगा, एक प्रेजेंटेशन राउंड होगा, जो HR राउंड होगा. सो व्हाट आई वुड से, ये तो पर्सनल चॉइस है. आप इजी राउट चूज करना चाहते हैं तो सर्विस इंडस्ट्री में इट्स वेरी लेस चैलेंजिंग टू गेट इन. आई वुड नॉट से इजी, इट्स लिटिल लेस चैलेंजिंग देन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. सो आप यू हैव टू डिसाइड. आई पर्सनली थिंक इट्स अ चॉइस ऑफ अ इंडिविजुअल.
And if I am a programmer, excellent programmer, I would choose a product base. I'm good at communication and talking and handling people, and I have a good team skills. And I just want to get some job exposure right away. Service industry is the first way. So ये choice की बात है. Yeah, just to add to that, I think it's not about which company, it's about who, right? Yeah. आपकी फिटमेंट अगर एक प्रोडक्ट कंपनी के लिए तो आप वेट करिए प्रोडक्ट कंपनी में जॉब के लिए. सर्विसेज कंपनी में जॉब ज्यादा इजीली मिलते हैं बिकॉज सर्विस कंपनी में लोगों की जरूरत ज्यादा रहती है. सिंपल एज दैट. Product companies are few and far in between. It's not very easy to get across to too many opportunities. मेगा, आपका प्रेजेंटेशन सबसे कम ड्यूरेशन का था लेकिन क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं. दीप्तांश ने एक और सवाल पूछा है. इन अ स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, मार्केट्स एंड डिमांड आर वेरी इंपॉर्टेंट टू. So do you have any specific account consultant, or you just do it by a hunch and the experience you have, or with the help of internet anyhow? Yeah. तो स्टार्टअप में बहुत कुछ आपको करवाना पड़ता है और करना पड़ता है, नहीं हो सकती. So I would just repeat again, and Deeptansh, I will be happy to connect for specific questions on startup. Hetal and I can have a call with you. But को आपका network सबसे ज़्यादा strong होना चाहिए. So my network had the right set of people. थे, मुझे पता था कि मुझे कोई काम कराना है तो मुझे कहाँ जाना है. सब कुछ तो मैं खुद से नहीं कर सकती. So pillar, and you should have the right network and resources with you. Wonderful. And I'll share my profile. Sure. Amrinder, Ananay ने एक सवाल पूछा है. I would like you to address that. Yeah, okay. So she's asking about whether product-based companies give more preference to a BTech degree from Tier 1 or 2 college or an MTech degree from the same college. Actually, this is a bit of myth. These product-based companies actually look for skilled people. It may be from Tier 1 college or even from some other remote college, because this many times ये देखा गया है कि बहुत एक ही सेम ही पैकेज Tier 1 कॉलेज से जिसको रिक्रूट किया गया है उसको भी दिया गया, और कोई भी एक रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज से किसी को that company have picked up, given the same thing. It depends on your skill set. If you are very skilled and suppose you have a extremely good programming skills and you have actually shown it via your during your interview, or your resume says that, because the companies are anyway going to test you, and based on that they will pick you up. So and or ये है कि whether MTech degree or an MTech degree from the same college would actually same thing. It doesn't matter if that particular company is looking for certain profile. If it is in you, then irrespective of your college, you are going to get it. Ultimately, it boils down to your competence level. That's what I'll say. Hetal? Yeah, thanks a lot. Yeah, I think मैं सिर्फ इतना ही ऐड करना चाहूँगा कि कंपनियां एमटेक को ज़्यादा रिस्पेक्ट देती हैं कि वो डिज़ाइन और कोर एरियाज में ज़्यादा फोकस करेंगे, जबकि बीटेक में एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा फोकस रहता है. उनकी कैपेबिलिटीज एग्जीक्यूट करने की काफ़ी रहती हैं. रवि, you want to add something? Yeah, for Deeptansh, I want to say एक उसमें जो crucial Oh yeah, point you are है, the startup guru. Sorry, Ravi. No. I need to just say कि आपने जो point बोला ना markets and demand का, तो जो सबसे important, one of the biggest reason जो startup fail होती है वो इसलिए होती है कि you build something that nobody wants. So knowing the demand is actually the first thing, and उसके लिए आपको कोई consultant नहीं और hunch भी नहीं, आपको market में होना पड़ेगा to understand demand कहाँ है. So that is what I will say. Internet search से थोड़ा ही पता चलता है, often laggard, मतलब बाद में पता चलता है. तो it all begins with कहाँ पे product की demand है, and is it a and what is the problem you're solving, right? And like you're saying, so that is where I think you should focus on, and that's kind of where I'll stop. So I just want to add to this very quickly. For Deeptansh, I think there are also many centers which are coming up, which are called as entrepreneurship centers, where you can actually devote 6 months of your time, and they even allow you to sort of play with whatever you have in your mind. I think that also could be helpful for you. And जिस तरह अमरिंदर ने प्लेसमेंट सेल के बारे में बात करी, काफ़ी बड़ी कॉलेजेस में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल भी होते हैं. अगर आपकी कॉलेज में नहीं है तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है
अगर आप में एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज हैं, कुछ लोगों ने काफी सवाल पूछे स्टार्टअप के बारे में, नथिंग टू स्टॉप यू फ्रॉम क्रिएटिंग दैट सेल योरसेल्फ। हर कॉलेज में हर डीन आर वेरी सपोर्टिव व्हेन स्टूडेंट्स आर क्रिएटिंग समथिंग ऑन देयर ओन, स्पेशली अगर वो पैसे नहीं मांग रहे हैं। और आप इसमें पैसे नहीं मांग रहे हैं, आप सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी मांग रहे हैं, रिकॉग्निशन मांग रहे हैं, सपोर्ट मांग रहे हैं, और हम सब आपके साथ हैं। आप में से किसी को भी अपनी कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल शुरू करना है, प्लीज कॉन्टैक्ट अस, वी वुड बी मोर देन ग्लैड टू सपोर्ट यू इन एनी वे। ज्ञान देना है, कनेक्ट करवाने हैं, आइडियाज वेट आउट करने हैं, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, ये सब चीजें डे इन एंड डे आउट हम लोग करते रहते हैं। वी वुड बी मोर देन ग्लैड कि अगर आपके पास कोई आइडिया है और उसको हम बिल्डअप करवा सकें तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी। सिमिलरली प्लेसमेंट की तरफ हम किसी के पास जॉब्स नहीं है, हम आपको जॉब नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको डायरेक्शन बिल्कुल देंगे। अमरेंद्र ने जो लिस्ट शेयर करी है कंपनीज की, ऑनेस्टली मैंने आज तक किसी जिंदगी में किसी को इतनी मेहनत करके 100 कंपनियों की लिस्ट बनाते नहीं देखा है। इट्स अ वेरी वेरी वैल्यूएबल लिस्ट। दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। ये कोई गारंटी नहीं देता है कि आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन ये जरूर गारंटी देता है कि आपके पास बहुत काम है अभी करने को। इसके साथ I would probably want to conclude this beautiful webinar which we have been very fortunate to be part of. आप लोगों ने कितना सीखा वो हम फीडबैक से जानना चाहेंगे, लेकिन मैंने बहुत कुछ सीखा है। That's all I would want to add. Ashutosh, back to you. Thanks a lot, the panel members. Really very insightful webinar. And just to add the last point, I think for all the students, it is very important to work on building your skills. Look at the areas where there is demand in the market. For example, in computer science areas like artificial intelligence, blockchain, or computer vision, all those areas where Python that we talked about, those are the areas where most of the demand nowadays. And develop your skills, go through all these websites where you can gain the certifications, the training, the knowledge, do the internship wherever possible. So build your profile in such a way that at the end of the fourth year you're bound to get a job. And irrespective of where you come from, which college, tier 2, tier 3, tier 1, does not matter. Once you get into the industry, you get your first job. After that, your performance, how is your skill, and what you do on the floor will be more important. And then you will be on par with any other student. And then from there you can grow. As you gain experience, you can go for a startup, or you can go for an MBA, or you can go for civil services. But right now, when you're doing this, the most important thing is to develop your skills in the important areas. So I'll just conclude, and thanks everybody for your time. It was really insightful and powerful session. And we'll also put the recordings within a few days. You can have a look at it, or you can recommend your friend to visit SBA YouTube channel, and they can see it from there. Ashutosh, does Shaluji want to say anything at the end, if she's around? I don't see her. Okay, no problem. Thank you. Thank you. Thank you very much, everyone. Thank you.